Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are great. Acha beta, let's begin question number 2. As you guys know, we are already done with question number 1 of the paper. So again, we are going to begin May-June 2023's paper number 22. So let's start the question. Okay. Rudra prepares a bank reconciliation statement for his business at the end of each month. Now, first, simply state 3 reasons why is it important to a business to prepare a bank reconciliation statements at regular intervals. Now, we can write many reasons, but obviously, right now, just 3 are required. So, we have to stick to 3 reasons only. Number 1, to ensure that our financial statements, which includes bank balance at the year end, are accurate. At the year end are accurate. That was the first reason. Obviously, whenever you're trying to prepare the financial statements, so obviously you'll be making the balance sheet, and the balance sheet has to show the bank balance in the current asset section. So that figure has to be correct. In that regard, that is the first benefit to prepare a bank reconciliation statement. Number 2, obviously, to reduce the chances of fraud, etc. That was the second reason. Now, moving on to the third reason. The third reason could be obviously to identify the errors in the either cash book and the bank statement. So it helps us to identify errors in the cash book / in the bank statement. So these are the 3 possible reasons, or obviously there are many other reasons as well, but primarily we have to write just 3 reasons, so we are just sticking to 3 reasons. Fine. So let's move on to the next part of the question. It says, on 31st of March 2022, the balance shown in the business's cash book, which means the bank columns, right, was overdrawn. It was overdrawn by 3060. So if you look at the format here, it says you have to prepare the cash book to show the updated balance at 31st March 2022. Dates are not required. Now here in this question, we need to prepare the bank column of the cash book, right? So firstly, we need to prepare the bank's column of the cash book. And definitely, as we have witnessed, say this is the debit side and this is your credit side. So definitely it was overdrawn. So if it's an overdrawn, definitely it has to be on the credit side. So let me write it here. Balance brought down from the question which was given to us was 3060. So obviously it was a negative balance on the bank columns of the cash book. Moving on with the question, it says they did not agree with the balances shown in the business's bank statement on that date. The difference in the 2 balances was accounted by the following. So obviously now there is a difference between the 2. Obviously the bank column of the cash book and obviously the bank statement. Obviously there is a great difference between these 2 balances. Now we need to figure out what's the reason behind these differences. The first reason, Rudra had omitted to record a direct debit for water charges of 442. That means direct debit. Direct debit is basically something that the money has been reduced or deducted from your bank account, but you don't know. So Rudra had omitted to record a direct debit for water charges. Definitely the amount has been deducted. The amount has been deducted from your bank statement, but you forgot to deduct it from your cash book. So definitely now you have to enter it on the credit side in the bank column of the cash book. Why? Because of simple reason, direct debit. डायरेक्ट डेबिट बेटा जब भी हमारे पास होता है तो डायरेक्ट डेबिट बैंक आपसे अमाउंट पैसे काट लेती है. आपके पास जो है वहाँ पे पीछे इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता कि आप अपने कैश बुक में एंटर कर सको, तो आपने गलती से उसमें एंटर नहीं किया, ओमिशन हो गई इन सिंपल वर्ड्स. तो अगर ओमिशन है तो मतलब ऑब्वियसली बैंक ने ये पैसे काटे होंगे, आपने मेंशन नहीं किया अपने कैश बुक में, सो डेफिनेटली आपका नेगेटिव बैलेंस और ज़्यादा हो जाएगा. सो लेट मी राइट हियर वाटर चार्जेस, और आपका नेगेटिव बैलेंस और ज़्यादा हो गया. पहले ओवरड्रॉन था 3060, डायरेक्ट डेबिट भी हुआ है, तो डेफिनेटली बैलेंस और आपका नेगेटिव में चला गया है. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स,
देयर वाज एन अनप्रेजेंटेड चेक टीके स्टोर्स 482 एंड आरएच सप्लाईज। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, जब हम रिकंसिलेशन बनाएंगे, लेट्स सपोज इफ वी आर आस्क्ड रिकंसिलेशन इन पार्ट बी और सी, देन वी हैव टू प्रिपेयर दिस अनप्रेजेंटेड चेक। तीसरा हम देखें तो इसको मैं यहाँ पे स्टैरिक मार्क कर लूँगा। ठीक है, तीसरा, बैंक चार्जेस ऑफ $85 appeared on the bank statement but had not yet been recorded in the cash book। अब बैंक चार्जेस ऑब्वियसली आपका बैंक ऑलरेडी ओवरड्रॉन है, आपने यहाँ पे ये चार्जेस अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो अपने कैश बुक में आपने और नेगेटिव बैलेंस रिकॉर्ड करना है, मतलब और पैसे रिड्यूस हो रहे हैं। सो डेफिनेटली ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू रिकॉर्ड दिस फिगर एज वेल, देयर इज बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस आपके पास कितने हैं? देयर वाज 85। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी आर डन विद दिस फिगर। Okay, so here it says, sorry, Rudra had debited the cash book with the cash takings of 893, but this had not yet been recorded by the bank. अब again, this is something relevant to the cash book, but it has nothing to do with the bank column, right? अब यहाँ पे कुछ cash takings है हमारे पास, cash takings हमारे पास कितनी है? That is like 893. तो again, this belongs to the bank reconciliation statement. We don't have to do anything with the cash book over here. रीज़न उसके पीछे क्या है? रीज़न हमारे पास ये है कि बेटा वो ऑलरेडी आपको कह रहा है कि जी रुद्रा हैड डेबिटेड द कैश बुक विद द कैश टेकिंग्स, तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे कैश बुक में डेबिट किया, तो इसकी एडजस्टमेंट अब बैंक रिकंसिलेशन में होगी। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि पार्ट ए में हम लोग कैश बुक की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें पॉइंट नंबर 5 में हमारे पास क्या चीज़ है? इट सेज अ चेक पेमेंट टू द पीपल of 320 had been correctly recorded in the bank statement but had been entered in the cash book as 230। मतलब बेटा ये है कि आपने कैश बुक में, अब यहाँ पे जब ये कहता है कि जी बट हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, तो इसका मतलब है कि आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में पैसे कम रिकॉर्ड किए हैं। एक्चुअली इट वाज 320, यू रिकॉर्डेड इट एज 230, तो डिफरेंस आपका कितना है? डिफरेंस आपने 90 है। सो 90 से आपने कैश बुक में कम रिकॉर्ड किए हैं, तो आपकी मजीद पेमेंट हो गई है, तो डेफिनेटली वी हैव टू क्रेडिट दिस अमाउंट एज वेल। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीटर का जो अमाउंट था दैट वाज 90, तो अगेन आपका नेगेटिव बैलेंस और ज़्यादा होता जा रहा है, राइट? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द बैंक स्टेटमेंट इंक्लूडेड एन एंट्री फॉर द डिसऑनर्ड चेक फॉर 582 रिसीव्ड बाय द रुद्रा फ्रॉम जमाइमा। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर्ड चेक। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एक डिसऑनर्ड चेक आ रहा है। डिसऑनर्ड चेक की अमाउंट कितनी है? दैट इज़ लाइक 582। अब थोड़ा सा ज़रा इसका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखिए हमारे पास कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है। देखें, बैंक स्टेटमेंट में उन्होंने एक एंट्री की है 582 की, मतलब ये है कि ये चेक मुझे मेरे कस्टमर ने दिया था जिसका नाम है जमाइमा। ठीक है, रिसीव्ड बाय रुद्रा। ऑब्वियसली हम जिस बिज़नेस के लिए बना रहे हैं वो रुद्रा का बिज़नेस है। अब उसने जब आपको चेक दिया था तो डेफिनेटली आपने अपने कैश बुक में, यानी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में आपने डेबिट कर लिया था। अब वो डिसऑनर्ड चेक है, डिसऑनर्ड चेक है तो मतलब ऑब्वियसली बैलेंस डेबिट नहीं हुआ, नेगेटिव बैलेंस ही है, मतलब बैलेंस आपका इंक्रीज रहेगा। नेगेटिव बैलेंस है, आपने डेबिट कर लिया था बिकॉज यू थॉट के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बैंकिंग वालों ने इसको रिजेक्ट कर लिया, चेक बाउंस हो गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अमाउंट इन द बैंक स्टेटमेंट और द बैंक बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर नेम्ड जामिया, नॉट जमाइमा, सॉरी, इट्स लाइक जामिया। ठीक है, सो लेट्स सी, ये बैलेंस भी हमारे पास यहाँ पे जो जामिया का बैलेंस है देयर वाज 582, ये भी हमारे पास नेगेटिव बैलेंस जा रहा है। ठीक है, सो ये बैलेंस भी हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट सेज एन एरर हैड बीन मेड इन द कैश बुक, एन एरर हैड बीन मेड इन द कैश बुक। Interest received of 225 had been correctly recorded in the bank statement but had been credited in the cash book। अब कैश बुक में आपने क्रेडिट किया, हालांकि इंटरेस्ट रिसीव्ड वी आर नॉट मेकिंग इनकम स्टेटमेंट राइट नाउ। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नेचर डेफिनेटली दैट्स एन इनकम। सो यहाँ पे हम एक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहे, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग अवर कैश बुक, हम कैश बुक की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश बुक में डेफिनेटली हमारे पास डेबिट होना चाहिए, आपने यहाँ पे क्रेडिट किया। तो यहाँ पे बेटा फर्स्टली यू हैव टू डेबिट इट वंस, आपने एक मरतबा डेबिट करना है इंटरेस्ट रिसीव्ड को, आपने एक मरतबा डेबिट करना है 225। दिस डेबिट इज गोना कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दिस क्रेडिट जो आपने किया। अब आपने करेक्ट वाली एंट्री भी तो करनी है, सो आपने दोबारा डेबिट करना है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने से? 225। सो अगर आप ओवरऑल देखें इसको, अगर मैं एक एंट्री में करूं तो इसको कॉमन एंट्री हम यहाँ पे लेते हैं डेबिट इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड अमाउंट वुड बी 225 plus 225, 450. So I have to debit my cash book with the amount of 450. तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने 450 के अमाउंट में डेबिट कर रहा हूँ
रेफरेंस मेरे पास जो आएगा दैट वुड बी इंटरेस्ट रिसीव्ड. ठीक है. सो वी आर डन विद दिस सेवंथ एरर एज वेल. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन कि अब हमारे पास टोटल्स कितने बनते हैं. अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे तो मेरे पास जो टोटल बनेगा, टोटल मेरे पास जब बनेगा, लेट्स बैलेंस दिस अकाउंट. अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट साइड को अगर मैं तमाम टोटल करता हूँ क्रेडिट साइड को, सो मेरे पास जो क्रेडिट साइड का बैलेंस बन रहा है दैट इज़ लाइक 4259. यहाँ पे जो बैलेंस बन रहा है 4259 माइनस 450, तो आपके पास जो कैरेट डाउन बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कैरेट डाउन दैट हैज़ टू बी 3809. अगेन कैरेट डाउन बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस ही हमारे पास आ रहा है, ब्रॉड डाउन हमारे पास 3809 बन जाएगा. ठीक है. सो हियर वी आर डन विद दिस preparing the cash book thing. Moving on to the next part, prepare a bank reconciliation statement to show the bank balance, to show the bank statement balance at 31st March. So we have to use, obviously उन्होंने starting हमें दी है, we have to use the balance from the updated cash book. अब do remember updated cash book में we have to take the bank balance, right, ताकि हम उसको reconcile कर सकें बैंक statement के balance के साथ. तो बैंक बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक में नेगेटिव है 3809. हमने यहीं से स्टार्ट लेना है. बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक दैट इज़ लाइक 3809. इफ़ इट्स अ नेगेटिव बैलेंस डेफिनेटली यू हैव टू पुट ब्रैकेट्स हियर. सो ये आपका नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे डिफाइन करेगा. अब डेफिनेटली हमने 2 एरर्स तकरीबन वहाँ पे छोड़े हुए थे. हमने कहा था कि हम इसको बैंक रिकन्सिलेशन में डील करेंगे. देयर वाज एरर नंबर 2 एंड एरर नंबर 4. एरर नंबर 2 हमारे पास देखें, एरर नंबर 2 में क्या कहता है. देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स टीके स्टोर्स 482 एंड आरएस सप्लाईज 1043. लाइक अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं. अभी ये चेक्स जो हैं बैंक ने क्लियर नहीं किए. मतलब ये चेक्स जब बैंक में प्रेजेंट होंगे तो बैंक का बैलेंस हमारा रिड्यूस होगा. तो फिलहाल ये अनप्रेजेंटेड हैं, हमारा बैंक का बैलेंस अभी रिड्यूस नहीं हुआ. अगर रिड्यूस नहीं हुआ तो डेफिनेटली अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम ऐड बैक करेंगे. 2 अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, एक 482 और एक 1043. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू ऐड बैक बोथ ऑफ द फिगर्स. सो लेट मी राइट इट हियर, अनप्रेजेंटेड चेक्स. तो अनप्रेजेंटेड चेक्स की जो मेरे पास अमाउंट बनती है, एक टीके स्टोर्स वाला था, their amount was 482. दूसरा जो था there was RH supplies and their amount was, if I'm not mistaken, 4043. yes, ये 2 अमाउंट थे. अब ये बैलेंसेस ऑब्वियसली अब दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये ऐड अप हो जाएगा. टोटल करेंगे तो टोटल आपका कितना बनेगा, दैट इज टोटलिंग टू बी हाउ मच. टोटल आपका बनेगा 1043 प्लस 482, दैट्स मेकिंग 1525. ठीक. सो अनप्रेजेंटेड चेक्स भी मैंने ऐड बैक कर लिए थे बिकॉज स्टिल वी हैव सम बैलेंस, राइट. अभी ये कस्टमर्स वहाँ पे नहीं पहुँचे, जब पहुँचेंगे तब बैंक का बैलेंस हमारा कम होगा. सो वी आर डन विद दिस पार्ट एज वेल. मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन. Rudra had debited the cash book with the cash takings 893, but this had not yet been recorded by the bank. अब बेटा कैश टेकिंग्स हमारे पास डेफिनेटली जो बिजनेस में हमारे पास कैश सेल्स होती हैं, कैश सेल्स से जो पैसे हमारे पास आते हैं तो उसको हम कैश टेकिंग्स कहते हैं. और ये कैश टेकिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, हमारे पास डेफिनेटली जो पैसा कस्टमर कैश में दे रहा होता है उसको हम टेकिंग्स कह रहे होते हैं. अब रुद्रा हैड डेबिटेड द कैश बुक विद द कैश टेकिंग्स ऑफ 893. अब आपने कैश बुक में तो एंट्री कर ली, बट दिस हैड नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय द बैंक. अब मतलब ये है कि जी आपने कैश बुक यानी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में आपने एंट्री कर ली, आपने डेबिट कर लिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी इसको रिकॉर्ड नहीं किया. तो चूंकि अभी बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो डेफिनेटली बैंक में तो बैलेंस नहीं शो हो रहा. तो अगेन हमने अब कैश बुक से भी इसको रिमूव करना है. कैश बुक से रिमूव करना है. क्यों रिमूव करना है, ताकि हम बैंक रिकन्सिलेशन जो बना रहे हैं ताकि हम अपने बैंक बैलेंस तक पहुंच जाएं. तो इट्स स्टिल अ नेगेटिव बैलेंस. वी अज्यूम दैट कि अभी तक ये पैसे हमारे पास नहीं आए कैश टेकिंग्स वाले. सो इट्स लाइक आउटस्टैंडिंग टेकिंग्स या आउटस्टैंडिंग बैंकिंग जिसको कहते हैं, इसलिए इसको मैं अभी इस वक्त रिमूव कर रहा हूँ. वाई, बिकॉज स्टिल द मनी इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर बैंक स्टेटमेंट. सो हम सिर्फ रिकन्सिलेशन पर्पज़ के लिए आउटस्टैंडिंग बैंकिंग्स को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा एक्चुअल बैलेंस कितना इस वक्त आउटस्टैंडिंग है. अगर आप इसको नेट ऑफ करते हैं यहाँ पे 3809 प्लस 1525 माइनस 893, तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल बैलेंस आता है बेटा देयर विल बी 3177. ये क्या चीज़ है, दिस इज़ लाइक आवर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. तो बेटा हमने फाइनली यहाँ पे बैलेंस पर एज बैंक स्टेटमेंट अपना फाइन कर लिया. सो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन था, बल्कि आई गेस वी आर हैविंग सम अदर पार्ट्स एज वेल. यस, वेरी इजीली.
Again, define each of the following. You need to define what is an unpresented check. अब unpresented check क्या होता है? Obviously unpresented check is a payment जो हम लोग अपने customers को, जो अपने suppliers को हम लोग जो है यहाँ पे payment करते हैं, वो suppliers को जब हम payment करते हैं, that is basically our unpresented check. And unpresented check जो है हम लोगों ने payment की होती है, वो check अभी तक बैंक में present नहीं हुआ होता, तो हमारा बैंक बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा होता है. ठीक है? So let me write it here. It's a check payment which we have already recorded. देखिए हमने चेक पेमेंट्स की हैं, हमने पेमेंट की है, तो हम पेमेंट किसको करते हैं? डेफिनेटली वी पे आवर सप्लायर्स. अगर हमने पेमेंट की है तो हमने वहाँ पे डेफिनेटली कैश बुक में तो इसको लेस कर लिया है, बट सप्लायर ने अभी बैंक नहीं गया, उसने बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस तो ज़्यादा शो हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स एन अनप्रेजेंटेड चेक. मतलब जब वो बैंक जाएगा, चेक प्रेजेंट करेगा, तब हमारे अकाउंट से पैसे वहाँ पे लेस होना शुरू हो जाएंगे. सो इट्स अ चेक पेमेंट ऑब्वियसली विच इज़ रिकॉर्डेड in cash book but not yet presented to the bank for payment. ठीक है? Moving onwards, it's a dishonored check. अब डिसऑनर्ड चेक ऑब्वियसली हमारे पास वो होता है, हमें हमारे कस्टमर पेमेंट कर देते हैं, तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि जी कस्टमर्स हमें पेमेंट कर देता है, लेकिन कस्टमर्स हमें चेक की फॉर्म में पेमेंट करते हैं. जब हम जाके बैंक में वो चेक प्रेजेंट करते हैं तो कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस इनसफिशिएंट होता है, तो बैंक हमें वो चेक वापस कर देता है बाय मार्किंग इट एज NSF. When I say NSF, NSF means obviously non-sufficient funds in the bank statement या in the bank account of a customer. So let me write it here. A check which is refused back refused by the bank usually due to non-sufficient funds. That's it, Ji. We are done with question number 2.